अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, खैर मकदम है आपका हाईटेक टीवी न्यूज में। मैं हूं जैनब गजाली। चलिए नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। भुवनेश्वरी की टीडीपी कारकुन के अहल खाना से मुलाकात। भुवनेश्वरी ने पोलमेटला गांव गोडियाडो हल्का गडला ललवेरू मंडल में पार्टी कारकुन अतलोरी वीरा लक्ष्मणा संजीव राव के खानदान से मुलाकात की। चंद्रबाबू नायडू की गैर कानूनी गिरफ्तारी को बर्दाश्त न करके वीर लक्ष्मणा संजीव राव, जो 63 साल के थे, दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए। भुवनेश्वरी ने इनकी तस्वीर पर खिराज तहसीन पेश किया और खानदान वालों को तसल्ली दी। वेनुकोंडा टाउन में एचके फिटनेस ने अपनी नई इफ्तिताई तकरीब में मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की। वेनुकोंडा के कानून साज श्री बोला ब्रह्मण्या नायडू गारी, तनावेडो यूथ लीडर बोलागिरी या बाबू के साथ हल्के सतह के लीडरान और दीगर ने शिरकत की। अत्तापुर राजेंद्र नगर हुदूद जीएचएमसी के अमले को आतिशें, असलहे और जदीद तरीन हथियारों से लैस किया जाना चाहिए। इसके साथ शूटर की हिकमत अमली और प्रोटोकॉल की खुसूसी तरबियत हासिल की जाए ताकि मुमकिन खतरात या हंगामी सूरत हाल के लिए मौसर जवाब को यकीनी बनाया जा सके। నా వీడియో కంటిన్యూ చేసుకుంటాను. ఫోన్ తీసుకో, ఈ ఫోన్ తీసుకో, బట్ ఇది ఆన్ ఉంది, బట్ తీసుకుని जिला एसपी आदिलाबाद गौस आलम ने नौजवानों को ऑनलाइन गेम्स और मटका की तरफ रागिब नहीं होने का मशवरा दिया है। इन्होंने कहा कि जिले में मुंशियात की लत और मटका के खात्मे के लिए सख्त इकदाम कर रहे हैं। जिला एसपी ने हफ्ते के रोज आदिलाबाद शहर मुस्तखर में पुलिस हेडक्वार्टर में मुनक्कद मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मीडिया को भीमपुर और जनित पुलिस स्टेशनों के तहत किए गए छापों से मुताल्लिक तफसीलात से वाकिफ करवाया। ఇది ప్రెస్ మీట్ ముఖ్యంగా ఇది టౌన్లో డిస్ట్రిక్ట్లో గ్యాంబ్లింగ్ మట్కా యాక్టివిటీస్ జరుగుతుంది, దీని గురించి ఉంది. 2 మట్కా గ్యాంగ్స్ టోటల్ 9 మందికి అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. ఇన్ విచ్ మట్కా చిట్స్ అండ్ 37,750 రూపీస్ నెట్ క్యాష్ కూడా సీజ్ చేయడం జరిగింది. జనరల్ మట్కా యాక్టివిటీస్ ఏమేమి నడుస్తుంది అండ్ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ తరఫు నుంచి మేము ఏమేమి చర్యలు తీసుకుంటున్నాము అది డిస్కస్ చేయడానికి ఈ ప్రెస్ మీట్ ఆర్గనైజ్ చేయడం జరిగింది. ముఖ్యంగా ఆదిలాబాద్ సబ్ డివిజన్లో అండర్ లీడర్షిప్ ఆఫ్ ఎస్డిపి ఆదిలాబాద్ జీవన్ రెడ్డి, టౌన్ ఇన్స్పెక్టర్స్, then Janath Inspector Sainath, Town Inspector Satyanarayan Ashok, and all other officers, SI Garu, all other officers, on my instructions, they have started acting tough against all these
మట్కా ఆర్గనైజర్స్. మీకు ఫిగర్ గురించి చెప్తే లాస్ట్ ఇయర్లో టోటల్ 43 కేసెస్ గ్యాంబ్లింగ్ యాక్ట్లో ఈ మట్కా గురించి రిజిస్టర్డ్ అయింది. దీంట్లో టోటల్ 116 అక్యూజ్కి అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. టోటల్ నెట్ క్యాష్ సీజర్ వాజ్ ₹6,54,000. ఇది లాస్ట్ ఇయర్ ఫిగర్. కానీ ఈ ఇయర్లో ఇప్పటి వరకు టోటల్ 12 కేసెస్ రిజిస్టర్డ్ అయింది. టోటల్ 41 persons have been arrested in which more than 1 lakh rupees have been seized. కానీ స్కేల్ మీరు క్యాష్ అమౌంట్ చూస్తే ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఆఫ్ క్యాష్ చూస్తే తక్కువ ఉంది సీజర్. కానీ వీఆర్ అరెస్టింగ్ పీపుల్ హూ ఆర్ రెగ్యులర్లీ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ దిస్, ఆర్గనైజ్ ఉన్నారు, వాళ్ళకి బైండ్ ఓవర్ కూడా చేయడం జరుగుతుంది. ఇది కాకుండా ఫ్రీక్వెంట్ హ్యాబిచువల్ అఫెండర్స్ మీద పీడియాక్ కింద కూడా మేము యాక్షన్ తీసుకుంటున్నాము. ఎప్పుడైనా ఈ టైప్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు వస్తే ప్లీజ్ ఇమీడియట్గా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వాలి. యూ జస్ట్ డయల్ 100. if you do not have any contact number also, just dial 100 and we'll act on that. So information network kuda memu on this activity we are increasing, and mana intelligence network prakaram we have registered these many cases till now. I like to appreciate work of especially Jaina Circle Inspector Saina. In his circle he has worked hard, and a lot of this matka gangs he has busted. For this press meet was organized. I hope through this media this message will go to the general public. रमजानुल मुबारक की मुनासिबत से शहर मुस्तखर आदिलाबाद के चांदा टी में वाक़ अक़लियती अक़ामती स्कूल्स बॉयज 1 में मुस्लिम तलबा के लिए तरावी का एहतमाम किया गया। हाफिज मजहर ने तरावी की नमाज पढ़ाई, फिर जो 17 रमजान को मुकम्मल हुई। तरावी में एक कुरान मुकम्मल होने के मौके पर एक तकरीब का प्रिंसिपल मोहम्मद आसिफ की निगरानी में प्रोग्राम इनकाद किया गया। इस तकरीब में मौलवी याकूब, मौलाना अबू ज़र, हाफिज उसामा और सदर मस्जिद अमर शमसुद्दीन को बतौर मेहमान खुसूसी मदऊ किया गया। रब्बुक सौत अदाब इन्न रब्बक लबिलमिरसाद फअम्मल इंसानु इज़ा मब्तलाहु रब्बुहु फअकरमहु व नअमह फयक़ूलु रब्बी अकरमन वअम्मा इज़ा मब्तलाहु फक़दर अलैहि रिज़्क़ह फयक़ूलु रब्बी अहानन कल्ला बल ला तुकरिमूनल यतीम। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अयहसब अन लम यरहु अहद अलम नजअल लहु ऐनैन व लिसानन व शफतैन व हदैनाहु नजदैन फलaqतहम अलअक़बा वमा अदराक मल अक़बा फक्कु रक़बा औ इत्आमुहु फी यौमिन ذी मस्ग़बा यतीमन ذा मक़रबा औ मिस्कीनन ذा मतरबा। अल्लाहु अकबर। समिअ अल्लाहु लिमन हमिदा। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। क़मर इज़ा तलाहा वन्नहार इज़ा जल्लाहा वल्लैल इज़ा यग़शाहा। जीएचएमसी कमिश्नर रोनाल्ड रोज ने हुक्काम को हिदायत दी है कि वो आबी वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खुसूसी कोशिशें करें। कमिश्नर ने आज ओहदेदारों के साथ श्रीलंगमपल्ली जोन में नेलगुंडा झील का मायना किया। इन्हें गैर मुल्कियों के हवाले करने से बचाने के लिए सख्त इक़दामात करने की हिदायत दी। एमएमसी वाटर माफिया सैकड़ों करोड़ों में डीसीपी जनसेना बीजेपी लीडर कोलू रविंद्र, विल्भनी, बालासूरी, सोडेष्टी, बालाजी और दीगर ने आग मछलीपट्टनम और वाटर माफिया दुनिया में नामालूम है। अगर मछलीपट्टनम के लोग पानी का टैक्स अदा करने के लिए खून और पसीना बहा रहे हैं
मुकामी एमएलए का नाम वेंकटरमण नामी है। मेयर, डिप्टी मेयर, म्युनिसिपल कमिश्नर, प्रिंसिपल ऑफिसर आपाशी हुक्काम के साथ डील करने के बाद गुज़िश्ता 6-7 माह से रात 10 बजे से सुबह 4 बजे तक म्युनिसिपल और प्राइवेट ट्रैक्टर वाटर टैंक्स और बगैर अच्छा पानी छोड़ रहे हैं। बल्दिया में इस वक्त काम कर रहे मुस्तकिल आरजी रिटायर्ड ड्राइवरों को छोड़कर तादाद रिजर्व के पंप तालाबों को भरने और कई इलाकों में प्राइवेट अफराद को सैकड़ों क्यूसिक पानी के पंप के तालाबों को भरने से ट्रैक्टर 5 से 10 हजार, टैंकर लारी 10 से 15 हजार में फरोख्त हुए हैं। टीडीपी सरबराह चंद्रबाबू नायडू ने मुस्लिम भाइयों के साथ कदेरी टाउन के SRSN कॉलेज ग्राउंड में इफ्तार डिनर में शिरकत की, मुसलमानों के साथ नमाज अदा की। बाद में चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि रमजान का महीना बहुत मुकद्दस है, मुसलमान भाई खुलूस नियत के साथ इबादत करते हैं। मैं रियासत को जीतने और रियासत की तामीर के लिए आपसे ताउन की दरख्वास्त करता हूँ। रमजान अल मुबारक हमदर्दी और गमख्वारी और सब्र का महीना है। इन ख्यालात का इजहार इमाम व खतीब मस्जिद अबू बकर हजरत मौलाना अकबरुद्दीन हुसामी नक्शबंदी ने मीडिया को दिए गए एक बयान में किया। आपको बता दें कि आदिलाबाद की मसाजिद में मुसलमानों ने रमजान अल मुबारक के तीसरे जुमे की नमाज पुरअमन माहौल में अदा की। उलमाए कराम ने अपने खिताब में रमजान अल मुबारक में किए जाने वाले अमाल बिलखुसूस ज़कात की अदायगी और आखिरी अशरे में एतकाफ करने की फजीलत से वाकिफ करवाया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु लिमन हमिदा। अल्लाहु अकबर। सल्लि अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़ति वल जलाल ने रमज़ान मुबारक का बहुत बेहतरीन मौका हम सब को अता फरमाया। 2 अशरे तकरीबन गुज़र चुके हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़ति वल जलाल के नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हलाक हो वो शख्स जो रमज़ान मुबारक का महीना पाए और अपनी मग़फ़िरत न करवा ले। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के कहने पर अल्लाह के नबी ने आमीन कहा है। तो इसलिए हम सबको रमज़ान मुबारक के जितने लम्हात बाकी है इसकी खूब कदर करते हुए सहर व इफ्तार में दुआ का अहतमाम और ख़ास तौर पर तरावी और कुरान की तिलावत कसरत से करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़ति वल जलाल का क़ुर्ब हासिल करें। और उसी के साथ साथ चूँकि आखिरी अशरा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्तकिल एतिकाफ़ फरमाया करते थे, तो ये एतिकाफ़ सुन्नत भी है। तो इसलिए तमाम मर्द हज़रात से भी हमारी दरख्वास्त है कि एतिकाफ़ के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो आखिरी अशरे का एतिकाफ़ करेगा अल्लाह ताला उसको 2 हज और 2 उम्रे का सवाब अता फरमाएंगे जो मकबूल होंगे। तो इसलिए औरतों से भी हमारी दरख्वास्त है कि इस वक्त सारे आलम को बिलखुसूस फ़लस्तीनी मुसलमान भाइयों को दुआ की सख्त ज़रूरत है। जहाँ हम खा रहे हैं पी रहे हैं, हमारे दस्तरखान सज रहे हैं, हमको कपड़ा भी अच्छा मिल रहा है, हमारे फ़लस्तीनी मुसलमान भाई इससे बहुत दूर है, तो हम उनके हक़ में एतिकाफ़ में बैठकर खूब दुआ भी करें। और उसी के साथ साथ जहां हम अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, हमारे घरों में अच्छी चीज़ें आ गई, ईद की तैयारी चल रही है, वहीं हमारे साथ रहने वाले गरीब, गुरबा, यतीम, ज़रूरतमंद, मुस्तहिक़ लोग हैं, तो हम सदक़े फ़ित्र, ज़कात, सदक़ात, अतियात के ज़रिए से ऐसे गरीब मुस्तहिक़ लोगों तक हम खुद पहुँच कर उनकी मदद करें, उनकी ज़रूरत का ख्याल करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी ज़कात अपने गरीबों, मुस्तहिक़ों तक और करीबी रिश्तेदारों तक पहुँचाकर ईद की खुशियों में हम शामिल करें। और ज़कात देना ये फ़र्ज़ अल्लाह ताला ने जिस पर किया है वो ख़ुद ले जाकर ज़कात दे। और ऐसे ही मुस्तहिक़ जो इदारे हैं, मदारिस दीनिया और मदारिस दीनिया और इसी तरीके से बहुत सारे बैतुल-माल वग़ैरह जो रिफ़ाही फ़लाही इदारे जो खिदमत अंजाम दे रहे हैं, उन तक भी अपनी ज़कात पहुँचाए। और उसी के साथ साथ ज़्यादा वक्त शॉपिंग में और बाज़ारों में देने के बजाय ये वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़ति वल जलाल ने मुझे आपको दिया है, तो दुआ और इबादत में गुजारे। ख़ास तौर पर जो लैलतुल क़द्र की 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं और आखिरी जो रात है लैलतुल जायज़ा, इसको भी अल्लाह ताला के लिए इबादत में गुजारे और खूब दुआओं का एहतमाम करे। चीफ जस्टिस रेवंत रेड्डी ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस DY चंद्रचूड़ से मुलाकात की। मालूम हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने बुध को तेलंगाना हाई कोर्ट की नई इमारत का संग बुनियाद रखा। जुमेरात को चीफ चंद्रचूड़ से चीफ मिनिस्टर ने फलकनुमा पैलेस में बशुक्रिया मुलाकात की।
गन बताकर फ्री पेट्रोल डलवाने वाले दो नौजवानों को मीर चौक पुलिस ने कर लिया गिरफ्तार। A1 बख्शी अली और दूसरे मोहम्मद अरशद, ये दोनों बचपन के दोस्त हैं। मीर चौक ACP ने इन दोनों को अदालत की तहवील में भेज दिया है। ये इंसिडेंट 27 को हुआ। जे विनय कुमार ये एतबार चौक में पेट्रोल पंप का मैनेजर है ना, इनके पास एक मोटरसाइकिल पे बख्शी अली एंड जाहिद एंड अरशद एलियास हर्षु, ये दोनों मोटरसाइकिल में आके पेट्रोल डाल बोल के बता दिए, तो वो लोग क्यू लाइन पे आओ बोल के बोले, और क्यू लाइन पे नहीं आके उधर राड लेके धरा दिए, मेरे को पेट्रोल डालो बोल के। वो लोग पकड़ने को आया तो इनके पास है ये एयर पिस्टल गन, वो लेके उनको मारे तो बोल के डरा तो वो लोग पहने करके चले गए। बाद में कंप्लेंट करे, ये कंप्लेंट रजिस्टर होने के बाद इनको पूरा आज पकड़ के पूरा इंटरगेट करे, तो इनके ऊपर 2 केस है। एक केस में उन्होंने साहू बता के RTC ड्राइवर को डरा दिए, वो केस में उन्होंने जाके 20 डेज जेल को जाके आया। और एक ये मीर चौक में ये 20 में एक मोटरसाइकिल का चोरी का केस में भी इन्वॉल्वमेंट है इनका, वो केस कोर्ट में चल रहा। ये दोनों का बार और इनको ऊपर 16 पेटी केस है। ये केस में फाइन पे करके आया। ये हिस्ट्री इनको ऊपर ओपन कर रहा हूँ। एक्चुअली इन स्टूडेंट से एजुकेशन सही नहीं हुआ, ये उन्होंने स्मोकिंग का ड्रिंकिंग का हैबिचुअल होगा। उनके फादर इनको रिहैबिलिटेशन सेंटर में बता के भी करे तो भी सही नहीं कर रहे। एसी मैकेनिक है, ये ऐसा बच्चा वेपन लेके डरा के लाइफ वेस्ट कर रही है। इनके ऊपर प्राउड शीट ओपन करके उन्होंने पूरा जेल को जाना होगा। जेल को जा रहा होने के बाद ऐसा हो गया इनको। इनके साथ है, उन्होंने इतने इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ये इनके ऊपर मोहम्मद अरशद बोल के अर्शु बोल के एक बच्चा बैठा हुआ है, उन्हें भी है, उन्होंने एक्टिविटी कुछ भी नहीं करे, उन्हें पूरा करे। इनके ऊपर पहले के केस भी है, उन्होंने पहले भी ये RTC ड्राइवर को शौक से पता है, इन्हें पता है, इन्हें डरा है उनको। और एक ये थेफ्ट केस में इनके साथ और 2 आदमी है, 3 आदमी वो मोटरसाइकिल थेफ्ट करे, इसमें तो 2 आदमी है। सर ये लाइसेंस है एक्चुअल की एयर पिस्टल को लाइसेंस की जरूरत नहीं है, ये मार्केट में अवेलेबल रहता। फिर ये किसको भी बता के डरा दिया तो केस आता। तो ये सर लाई काम से ये पूरा हमारा मार्केट में मिलते रहते हैं, ये ऑनलाइन में मिलता, ऑनलाइन पे लिए बोल के। ऑनलाइन के लिए सर कुछ मैसेज देना चाहते हैं, ऑनलाइन बेचे तो वैसा करेंगे तो खरीद के लिए वो होगा ना। ऑनलाइन जो बेच रहे हैं तो इसके लिए कोई मैसेज बेचने वालों को, ये उनको बेचने वाला है तो उनको राइट है, बेच सकते। फिर उन्होंने कंडीशन रखना, ये किसको बेचना है किसको नहीं है। एक बच्चों को, एक ये वोटर्स को, ये लर्नर स्टेज में रहता ना, ऐसा लोगों को ये यूज करे तो अच्छा रहता। फिर ऐसा ये बड़े वालों को अननेसेसरी सोर्समेंट वो पे बेचे तो ऐसा काम करते। इस वास्ते लाइसेंस निकाले तो सर अच्छा रहता, आम आदमी भी खरीद लिया तो परेशानी नहीं है सर। ये एक्चुअली लाइसेंस के बारे में तो हम नहीं बोल सकते, ये गवर्नमेंट का आर्डर है, ये वेपन के बारे में अलग अलग रहता। मीरपेट पुलिस स्टेशन पर ECB का छापा। जिले में मीरपेट के मीरपेट पुलिस स्टेशन में एक मामले में ACB अफसरान ने 20,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। मुकम्मल तफसीलात मालूम होना अभी बाकी है। MP उम्मीदवार बाजी रेड्डी गोवर्धन, MLA विमला प्रशांत रेड्डी, राज्यसभा के अरकान सुरेश रेड्डी, JNP के चेयरमैन विठल राव, साबिक MLC VJ गौड़ और दीगर ने वेलपुर और बालकोंडा मंडलों के कारकुनों की तैयारी की मीटिंग में हिस्सा लिया। बैनुल अक़वामी ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के महीने विमेंस फोरम की SC/SC मार्च 2024 के मौके पर जानिब से आगाही सेशन मुनक़्क़द किया गया। तेलंगाना में मजहबी मुनाफिरत को हवा देने वाले लोगों की मौजूदगी देखी जा सकती है। राजकार फिल्म जो तालिक़ को मस्क करती है और मज़ाहिब के दरमियान तफर्रुक़ा पैदा करती है, इस पर तब पाबंदी लगाई जाए। AIF राष्ट्रीय समिति। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर GHMC ने कहा कि अब तक जिले हैदराबाद के 2 पार्लिमानी हलकों में 2 करोड़
93,46,200 रुपये नकद और 92,27,165 रुपये के दीगर अशिया जब्त की गई हैं। पार्लिमानी इंतखाबात के तनाजुर में ज़ाब्ता अखलाक के बारे में कमिश्नर रोनाल्ड रोज ने कहा। स्लैक मुरादाबाद पुलिस ने गैर कानूनी असलाह बनाने वालों को गिरफ्तार करके 14 गैर कानूनी बंदूकें बरामद कर ली हैं। लिंगर लोकसभा इलेक्शन के मुहिम के तहत मंडा पांडे पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने मुलजिम उस्मान पत्रा चिड़ा साकिना नारवली थाना बनियाधड़ जिले संबल को गिरफ्तार किया है, जिसके पास 14 गैर कानूनी बंदूकें थी। सर, आज के संबंध में प्रेस वार्ता की जा रही है। देखिए, लोकसभा चुनाव और उसको लेके जो पुलिस की कार्रवाई निरंतर हम लोग कर रहे हैं, जिसमें पिछले दिनों आपने देखा था कि शराब की तमाम भट्टियां उन पर कार्रवाई की गई थी। शराब, एनडीपीएस और जो अवैध शस्त्र हैं उन पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए और चुनाव भी हमारी प्रक्रिया में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो, इसके लिए पुलिस निरंतर प्रयासरत है, सतर्क है। उसी क्रम में आज मूड़ा पांडे थाना पुलिस को एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है, जिसमें एक व्यक्ति जिसका नाम उस्मान पुत्र छिद्दा है, ये जो बनियाठेर थाना का रहने वाला है, उसकी इसमें गिरफ्तारी हुई है। ये व्यक्ति थाना मूड़ा पांडे क्षेत्र में जो सरकड़ा खास जो गांव है, वहाँ से खैर खाता की ओर जो रास्ता जाता है, उस पर एक ITI की पुराना बंद परिसर है, वो जहाँ कोई आता जाता नहीं है, सुनसान जगह है वो, वहाँ पर इसके द्वारा अवैध रूप से तमंचों का निर्माण किया जा रहा था, जिसके लिए इसने जो आवश्यक प्रबंध वहाँ पर किए थे। जो असला बनाने के लिए जो संसाधन जो उनकी ज़रूरत होती है सामान की, वहाँ सब इसके इकट्ठे किए हुए थे इसने, और वहाँ पर ये निर्माण कर रहा था इनका। और इनका प्रयोग निश्चित रूप से लोगों को ये बेचे जाते हैं और इनका अपराध की दृष्टि से इसका यूज़ किया जाता। इसमें इस गिरफ्तारी के पश्चात ये बड़ी संख्या में जो असले बरामद हुए हैं, जिसमें लगभग बने और अधबने मिला के कुल 14 तमंचे हैं, जो कुछ 12 बोर के और 315 बोर के हैं, जिसमें 10 तमंचे 12 बोर के हैं जो पूरी तरह बने हुए हैं, एक अधबना तमंचा और है 12 बोर का। इसी प्रकार 2 बने हुए तमंचे 315 बोर के हैं और एक अधबना तमंचा 315 बोर का ही। इसके अलावा इनके कब्जे से कुछ कारतूस भी बरामद हुए हैं, जो ये अपने ग्राहकों को इन्हीं अवैध तमंचों के साथ साथ उनको बेचते थे। इस व्यक्ति के बारे में जानकारी की गई तो इसका बहुत ही लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास है, और ये पूर्व में ये आर्म्स एक्ट के अलावा गैंगस्टर अधिनियम और लूट इत्यादि के मुकदमों में भी जेल जा चुका है। इस पर लगभग 44 मुकदमे हैं, जो जनपद संबल से संबंधित हैं और अन्य थानों से भी संबंधित हैं। इससे पूरी मझोला से भी आर्म्स एक्ट की कार्रवाई में जेल जा चुका है। तो इस प्रकार ये बहुत ही महत्वपूर्ण सफलता है, और इस जो बरामदगी बड़ी संख्या में भारी बरामदगी हुई है, इससे जो हमारी चुनावी प्रक्रिया है वो उसकी शुचिता बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान मिलेगा। यही आरोपी था जो ये काम कर रहे थे? जी हाँ, अभी मौके पर यही व्यक्ति मिला है, इसके द्वारा निर्माण किया जा रहा था। बाकी इसके ग्रुप में जो इसकी सप्लाई चेन होगी, जिसमें लोग आगे तक बेचते होंगे, लोग से संपर्क करते होंगे, उनके बारे में अभी और विस्तार से हम लोग जानकारी कर रहे हैं, और जो लोग भी इस ग्रुप में इससे जुड़े हुए होंगे उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। सर, ये मांग के अनुसार बनाते थे ऑर्डर पे, और कितने में ये बेचते थे क्या? अभी इससे पूछताछ की जा रही है। ये अलग अलग ग्राहकों के हिसाब से बेचते थे उसको, और अमूल क्योंकि 12 बोर और 315 बोर के तमंचों की डिमांड अक्सर हुआ करती है, तो उसी को लेके ये इसके द्वारा निर्माण किया जा रहा था। सर, जैसा कि 44 मुकदमे इस पर पहले से मौजूद है सर, तो क्या कुछ अनुमान लगा सकते हैं कितने समय से होगा सर ये धंधे में लिप्त? इसके ऊपर वर्ष 2011 तक के मुकदमे हैं जी सर। तो इससे स्पष्ट है कि पिछले 12, 13, 14 साल से ये अपराध में निरंतर संलिप्त है। कई बार इसको जेल भी भेजा गया है, इसके बाद भी, क्योंकि अभ्यस्त अपराधी है ये, और इसके द्वारा इस तरह का काम किया जा रहा है।